the spreading of this health issue, autism, which is very common and widely seen nowadays. In past 2 years, due to lockdown, stress factor has increased a lot due to jobs, lockdown, losses, and many more reasons. The mental health and the growth of the babies affected, hindered due to this. This may be a factor that autism is seen in the kids, and the rate is increased in these 2 years a lot. We at Endicare Nirogam Private Limited at Rishpush, our whole team is putting efforts to noise abroad among the people to withhold the health issue. Our doctor's team, working under our supreme guiding force, His Excellency Dr. Navdeep Sharma ji, is working hard into it. And I'm happy to tell you that Dr. Navdeep Sharma ji is the only one PhD in role-of Ayurvedic herbs in psychological disorders, and autism is one of them. Has dedicated 22 successful years in brain-related ailments. Yes, you heard it right. 22 successful years in brain disorders. Only face who has represented Indian Ayurveda in British Parliament, UK, and many more international ventures to spread the awareness and knowledgeableness for such health issues and to benefit humanity. And I'm pleased that I am working under his prestigious guidelines. Although I'm not a doctor, I'm a senior counselor, and I have seen so many patients, so many children being recovered, overwhelming the symptoms, and living a healthy life. Under his esteemed guidance, all doctors are handling, discussing every case in person with Dr. Navdeep Sharma ji and giving recovery to thousands of patients. I'm requesting you to forward this video to the maximum and join the hands with us to help those who are in bad mental health. With our collective efforts, we can have a healthier and a better society. Every child is beloved and deserves the best. So without wasting much time, let's start this video. Watch the video till the end. For any questions, you can post your concerns in the comment section. You can drop your phone number as well in the comment section, or you can give us a call upon our helpline number, which is currently visible on the screen. Good day all, Dr. Shubhra this side from Endicare Nirogam Private Limited. Welcome to our channel Rishpush, as it's World Autism Day today. So I would like to share with you some important introductory points about autism and also the best Indian herbs used in treatment of autism patients. Now, autism is actually a neurodevelopmental disorder. Autism, also termed as ASD, which is Autism Spectrum Disorder. It refers to a broad range of conditions characterized by challenges with social skills, social behavior, repetitive behavior, speech, as well as non-verbal communication. Nowadays, the best Indian herbs which are used in the treatment of autism since long period of time, and they have been mentioned in Ayurvedic literature with successful results. Some of them are like Brahmi, which is Bacopa manori, Ashwagandha, Withania somnifera, Shankpushpi, Convolvulus pluricollis, Mandukparni, Centella asiatica, garlic, which is Allium sativum, haldi, which is curcumin, and yes, lavender flowers. Now most of these have properties of behavioral alterations as well as they prevent oxidative changes, and hence they have been used in the treatment of autism successfully since long period of time. This much for today. We wish all the autism patients fast recovery and healthy life ahead from Rishpush family. Thank you so much. Hello everyone, myself Dr. Navpreet and welcome to our channel Rishpush.
आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे पे मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का, जिन्होंने अपने चैनल पे हमें रूबरू होने का मौका दिया। और अब हम बात करेंगे ऑटिज़म की। आयुर्वेदा हैज़ व्यूड ASD एज अ बिहेवियर एबनॉर्मलिटी विद इट्स रूट सिचुएटेड इन द डिफेक्टिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिस्टम। और जैसे कि हम बात करें ऑटिज़म की, तो ऑटिज़म में हर बच्चे में डिफरेंट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी या फिर सोशल बिहेवियर, सोशल स्किल्स और आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पाना, स्पीच में प्रॉब्लम होना। तो अगर हम ऑटिज़म को आयुर्वेद में देखें तो ये ऑटिज़म जो है वातजन्य विकारों के अंतर्गत आता है, जिसमें कि वात जो है वो बॉडी में प्रकोपित हो जाता है। और हमारे जो इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें हर्बल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो कि राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करके आई कांटेक्ट और स्पीच में जो है वो लाभ मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे जो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है वो वर्ल्ड रिनाउंड जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी, उनकी गाइडलाइंस के अंदर किया जाता है, जो कि PhD हैं साइकोलॉजी में। और उसमें उनका जो मेन जो विषय रहा है वो ऑटिज़म का ट्रीटमेंट है। और इसमें जो भी जैसे कि हम अगर एलोपैथी की बात करें, अगर किसी बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है तो उसमें क्या रहेगा कि सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है, जिसमें कि हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए उसमें सेडेटिव्स दिए जाते हैं जो कि ब्रेन सेल्स को जो है और वीक कर देती हैं, इनएक्टिव कर देती हैं, जो कि प्रॉपर बच्चे के ब्रेन की न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो पाती, और वो एंजाइटी और जैसे कि ऐसे रेस्टलेसनेस ऐसे जो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और हमारी जो ट्रीटमेंट रहता है इसमें क्या है, मेडिसिन जो कि ब्रेन सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और इसको साथ साथ जैसे आई कांटेक्ट और स्पीच में हेल्प करते हैं, और साथ ही हाइपर एक्टिविटी को भी कम किया जाता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और रेस्ट आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग हमारी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो थैंक यू। Hello everyone, Dr. Ruchi this side from Rishpush. Welcome to our channel. First of all, I will thank my senior most Ayurvedic physician Dr. Navdeep Sharma ji for giving me opportunity to get connect with you and guide you regarding some miraculous formulations for autism child. See, if we talk about the autism is something which is related to the growth development disorder, in which there is a faulty growth of a child. There is not achieving the proper milestones, and all these are due to the imbalance of Vata dosha in the body. If there is a root cause is a Vata dosha in the body, then the treatment, then the answer is definitely to pacifying that Vata dosha. When that Vata dosha will be pacified, there will be decreased level of toxins in the brain level, and definitely there will be a decrease of Vata dosha in the brain, and all the activities, all the hyperactivity, everything will be get controlled. So when we talk about some herbs which helps in all these things, these are Brahmi, these are Kushmanda, and Shank Pushpi, Tagara, Ustkadus, a number of herbs which actually helps at this cellular level and make proper achievement of developmental milestones, decrease the toxins level in the brain, work in the proper coordination of the left and right brain so that a child can understand each and everything. But it is not possible to take all these herbs separately. So we need some formulation in which all these herbs added in an adequate quantity for a child, for a proper treatment, for a proper improvement. So if we will talk about such kind of miraculous herbal formulation, then only one thing comes into my mind, and this is a Breno A, Breno R syrup, and the Cephalogo. Because all these three, the herbal formulations that I have told you, Breno A, Breno R, and Cephalogo,
these 3 herbal formulations are like that which actually works at the neurons level, which helps in decreasing the toxins level in the brain, so that there will be increase of mental ability. A child can understand each and everything, grasp each and everything, responds to a social activities and all this only happens because all these herbs having the herbal extracts actually, which actually works at the hippocampus level, which actually increase the acetylcholine in the hippocampus in the brain, and therefore there is a proper coordination of the left and right brain, and there is a proper growth milestones that can be achieved. Also, it is very important that herbs that present in the these formulations should increase the coordination of Dhi, Dhriti and Smriti, decrease the Vata imbalance in the body, and yes, all these herbs do that at the cellular level. That's why these are the miraculous herbs. So that's why I always suggest my autism patients that these Breno A, that is very good if we will talk about because it is actually a cerebral stimulator which helps in increasing our you can say understanding the things, grasping the things, memory level and everything. So speech related issues get cured very easily and very quickly, very safely with this formulation. If we talk about the Breno R, it is also a very, very good herbal formulation which helps in calms down the brain, which actually decreases the hyperactivity of an autistic child, which is a very, very important symptom in autism, which hinders in understanding things and all. And if there will be decrease of hyperactivity, there will be increase of calmness in a child, there will be increase of understanding. And if we talk about the Cephalago, it is a herbal blend. It is a proper herbal formulation which increase the acetylcholine in the hippocampi and therefore increase the coordination of the brain and make the child mental ability very up to the mark. So from my side, I always suggest you to go with the best herbal formulation always for your child, and these are the miraculous herbal formulation that I have talked to you about. So just save your child with the safest herbal combinations, and stay safe, stay healthy, stay tuned. Thank you. नमस्कार, मैं डॉक्टर निखत आज आपको ऑटिज़म की डाइट के बारे में बताने जा रही हूँ। डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है आयुर्वेद में। इसको त्रयो उपस्तंभ में बताया गया है। आहार, विहार और औषध मीन्स मेडिसिन के साथ साथ डाइट और जो लाइफ स्टाइल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि यथा अन्न तथा मन, मतलब जो भी हम खाते हैं वो हमारे मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए हमें डाइट बहुत अच्छी ऑटिज़म बच्चे में मतलब जो उसके लिए बेनिफिशियल हो वही देनी चाहिए। आयुर्वेद में ऑटिज़म के लिए सात्विक डाइट बताई गई है। सात्विक डाइट वो होती है जो रज और तम दोष को कम करे। तो क्योंकि ऑटिज़म जो होता है वो तमोगुण प्रधान मतलब प्रॉब्लम होती है, व्याधि होती है, तो इसके लिए हमें सात्विक डाइट बच्चे को देनी है। तो जो डाइट देनी है उसके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊंगी कुछ रूल्स जो हमें आयुर्वेद में डाइट के लिए फॉलो करना है। सबसे पहले तो जो खाना है उसको टाइम से जो है बच्चे को देना है। तो और इसके अलावा जो है साथ में भोजन होना चाहिए, मतलब जो बच्चे की सुटेबल हो उसके लिए वो भोजन बच्चे को देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे के ऑटिज़म के में बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन वो आपके बच्चे को सूट नहीं कर रही है तो वो डाइट बच्चे को नहीं देनी है। इसके अलावा हित डाइट मतलब प्रकृति के अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ दोष जो होता है ये जो प्रकृति होती है वात पित्त कफ उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को डाइट देनी है, दोषों के अकॉर्डिंग, ताकि वो उसके लिए मतलब बेनिफिशियल हो सके। इसके अलावा जो भी खाना दे रहे हो वो लघु होना चाहिए और
स्निग्ध होना चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा घी ऑयल हो ताकि, और लघु होना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो ये कुछ रूल्स हो गए। अब ये आ गया कि मात्रा कितनी, मतलब क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हम एज्यूम कर लेंगे स्टमक को 4 पार्ट्स में। इसमें 2 पार्ट सॉलिड डाइट होनी चाहिए, 1 लिक्विड होनी चाहिए, 1 एयर। जो एयर वाला पार्ट होगा वो वात दोष के लिए होगा, ताकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो उसका मूवमेंट अच्छा हो और वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो सके। अब बात करते हैं कि हमें क्या डाइट देनी है ऑटिज़म के बच्चों में। तो सबसे पहले हमें बच्चे को घर का ही खाना देना है, सिंपल सब्ज़ी, चपाती, दाल। इसमें बच्चे को नट्स का प्रॉपर, मतलब डेली आपको बच्चे को नट्स देने हैं, जैसे 4 से 5 आलमंड्स हो गए, 2 से 3 अखरोट हो गई। तो आलमंड्स आपको क्या करना है कि रात में 4 से 5 आलमंड्स भिगो देना है, सुबह उसके छिलकों के निकाल करके क्रश करके शहद मिक्स कर कर बच्चे को देना है। इसके अलावा मिलेट्स, जिसको हम रागी कहते हैं, और बकव्हीट, जिसको हम कुट्टू का आटा कहते हैं, ये बहुत, मतलब ये जो है कैल्शियम रिच होते हैं और ये ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स जैसे कि फ्लैक्सीड हो गया, वॉलनट्स हो गया, आलमंड हो गया, ये आपको बच्चे को देना है। बच्चे को रात में हल्का गर्म दूध भी देना है, लेकिन कोशिश करिए कि वो गाय का दूध होना चाहिए। ज़्यादा मिर्च, मसाले, ऑयली, मैदा की बनी चीज़ें ये नहीं देनी है। प्रोसेस्ड फूड हो गया या केमिकल मिक्स या प्रिजर्वेटिव मिक्स जैसे कि चिप्स, चॉकलेट ना, ये सारी चीज़ें बच्चे को नहीं देनी है। नाइट शेड में उगी हुई सब्जियां जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, आलू है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स तो ऐसे नॉर्मली आप दे सकते हो बच्चे को, उसके जूसेस भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो जूस दे रहे हो वो फ्रेश होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं होना चाहिए, जो आजकल पैकेट फ्रूट जूसेस आते हैं वो अवॉइड करना है। आपको सिंपल घर का बना फ्रेश जूस देना है, और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो अवॉइड करना है। बच्चे को आप जो है दही दे सकते हो, लेकिन उसको डाइल्यूट फॉर्म में कर ब्लेंड कर लीजिए, मतलब दही में पानी मिक्स कर उसको ब्लेंड कर लीजिए। उसमें भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी 1 चुटकी डालकर वो बच्चे को आप दीजिए। इससे डाइजेशन भी प्रॉपर होगा और मतलब ये मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो और भी चीज़ें बच्चा लेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी बॉडी में होगी। तो इस तरह से आपको जो है बच्चे को प्रॉपर डाइट देनी है, घर का खाना देना है, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देनी। जैसे मैंने बताया चॉकलेट, चिप्स, ये सब जो भी बेकरी के आइटम्स होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। सात्विक डाइट देनी है बच्चे को, ताकि बच्चे का जो है मतलब डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि, और इससे जो है ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा, मतलब अच्छी हम डाइट देंगे तो जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। नमस्ते, आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे किस प्रकार से आयुर्वेद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में लाभप्रद हो सकता है। ऑटिज्म, जिसे हम आयुर्वेद में उन्माद भी कहते हैं, लेकिन इससे ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या उनको साइनस सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन कम होना, उनका आई कांटेक्ट ना होना, उनका ढंग से बात ना कर पाना, उनकी स्पीच डिलेड होना या ना होना, हियरिंग इम्पेयरमेंट होना, और साथ ही साथ बच्चों का सोशली इंटरेक्ट ना कर पाना, उनका जो है फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आता जब वो बात करते हैं। तो इन सारी चीजों का जो इलाज होता है वो आयुर्वेद में आहार, विहार, औषधि और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है पंचकर्म के माध्यम से हम यहाँ पे एनडी केयर न्यूरोगुड प्राइवेट लिमिटेड में हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर नवदीप शर्मा जी की गाइडेंस के अंडर बहुत ही सालों से करते आ रहे हैं। और इस इलाज को करने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम सफलतापूर्वक एक मेडिसिन फ्री लाइफ और एक इम्प्रूव्ड लाइफ दे चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि बेसिक पंचकर्मा या जनरल पंचकर्मा में हम यहाँ करते क्या हैं, तो देखिए पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद की एक मुख्य ब्रांच है, जिसमें 5 प्रकार के ऐसे कर्म कहे जाते हैं जो कि इन बच्चों में एक ब्रेन डेवलपमेंट और साथ ही साथ नरिशमेंट देने का काम करता है। अगर हम बात करें ऑटिज्म के बच्चों में, तो देखिए जब बच्चे हमारे पास आते हैं वो मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। ऑफ कोर्स बच्चे तो इन चीजों को नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं
वो हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल इंटरेक्शन नहीं होता बच्चों का, या वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, या वो किसी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, या वो बोलते नहीं हैं ठीक से। तो इन सारी चीजों में देखिए पंचकर्म में अभ्यंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम फुल बॉडी मसाज कहते हैं। फुल बॉडी जो है बच्चों का मेडिकेटेड ऑयल से, जैसे बला है, शीर बला है, और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए हैं, और रिसर्च बेस्ड हमारे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी द्वारा जो है वो बताए गए हैं, और हमने ऐसे ही बहुत से सफलतापूर्वक इलाज भी किए हैं। तो अभ्यंग करके बच्चों का मेडिकेटेड ऑयल से प्रॉपर्ली मसाज करके, उनको डिकॉक्शन के थ्रू उनको स्टीम देके, और मल्टीपल ऐसी थेरेपीज करके, जिसमें कि शिरोधारा, इसी के साथ शिरो अभ्यंग करके, शिरो बस्ती करके, मेडिकेटेड ऑयल का पूलिंग करके, एक कांस्टेंट फ्लो देके, आपके आग्नेय चक्र पे बेसिकली एक कांस्टेंट फ्लो दिया जाता है ऑयल्स का, और साथ ही डिकॉक्शंस का या फिर घी का। तो ये सारी चीजें देके बच्चों की जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जब आहार खाने के ऊपर जब हम वर्क करते हैं कि किस प्रकार का खाना बच्चों को दिया जाना चाहिए, उसके साथ साथ विहार, किस प्रकार का आपको जो है बच्चों को खेलना कूदना या किस प्रकार की जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व करना, साथ में औषधि मेडिसिन देना, एंड बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ ठहर के द टीम ऑफ डॉक्टर्स विच एक्चुअली वर्क्स अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नवदीप शर्मा जी, वो हम लोग किस प्रकार से एक सफलतापूर्वक जिंदगी जो है वो बच्चों को देते हैं। तो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूंगी कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे आइए, हमारे साथ जुड़िए, और बच्चों को जो कि ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं उनको हम किस प्रकार से एक बेहतर लाइफ और अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो आप हमारे पास आइए और हमसे गाइडेंस कभी भी किसी भी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ के गाइडेंस इस बारे में ले सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, हृष्ट-पुष्ट रहिए। डॉक्टर अंकिता शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती शर्मा, और आज हम बात करेंगे उन्माद के बारे में, मीन्स ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म को आयुर्वेद में उन्माद कहा गया है, और 5 तरह के उन्माद जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं। वात पित्त कफ 3 दोष हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वात पित्त कफ दोषों पे निर्भर करती है, और उन्माद में भी हमारे आयुर्वेद में जो उन्माद बताया गया है वो 5 तरह से बताया गया है, और जिन्हें कि हम इस तरह से बताते हैं: वात पित्त कफ सन्निपातश एंड आगंतुक। वात पित्त कफ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब वात जो दोष है वो इम्बैलेंस होगा तो वातज उन्माद के लक्षण पैदा होना शुरू हो जाते हैं बच्चे में, और इसी तरह से पित्त के इम्बैलेंस होने से पित्तज उन्माद के लक्षण पाए जाते हैं, और कफ के इम्बैलेंस होने से कफज उन्माद के लक्षण जो है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जब तीनों दोषों के लक्षण, तीनों दोषों की इम्बैलेंसिंग जब हो जाती है तो उसे सन्निपातज उन्माद कहा जाता है। और आगंतुज उन्माद होता है जब किसी भी चोट लगने से, कोई ग्रीफ हो जाने से जो है उन्माद के लक्षण बच्चे में दिखाई देने शुरू हो जाए तो उसे आगंतुज उन्माद कहा जाता है। आयुर्वेद में उन्माद की बहुत ही सक्सेसफुल चिकित्सा जो है वो बताई गई है, जिसे कि हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक रहता है शमन चिकित्सा और दूसरा रहता है शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा वो रहती है जिसमें हम दोषों को बैलेंस करने के लिए कुछ हर्ब्स और मेडिसिन का यूज आयुर्वेद से करते हैं, और वहीं शोधन चिकित्सा रहती है जिसमें कि कुछ एक्सटर्नल थेरेपीज, पंचकर्मा थेरेपीज के माध्यम से दोषों को बैलेंस करते हैं, और साथ में अग्नि को बैलेंस किया जाता है। अग्नि जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो अग्नि पे बहुत निर्भर करती है। तो आयुर्वेद से शोधन और शमन दोनों में ही हम ब्रेन की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की अग्नि पे भी काम करें। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ कि शोधन चिकित्सा क्या रहता है। शोधन चिकित्सा में डिफरेंट पंचकर्मा थेरेपीज किए जाते हैं, जैसे कि नस्यम, शिरोधारा, बस्ती। ये डिफरेंट थेरेपीज के माध्यम से, एक्सटर्नल थेरेपीज के माध्यम से दोषों को बैलेंस में लाया जाता है और फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन को बूस्ट किया जाता है।
आयुर्वेद में आप देखेंगे कि आज बहुत से पंचकर्मा सेंटर्स आप कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे हम पंचकर्मा थेरेपीज करा सकते हैं। बट हमारा जो पंचकर्मा आयुर्वेद का जो पंचकर्मा आपको ऋषिपुष्ट से मिलेगा वो बहुत ही अलग है दूसरे पंचकर्मा सेंटर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं वो बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से पहले मेडिसिन तैयार किए जाते हैं और फिर वो थेरेपीज जो है वो किए जाते हैं। सेम मेडिसिन हर बच्चे पे नहीं किया जाता है। आप देखेंगे कि हर बच्चा, हर केस जो है वो ऑटिज्म का हो या किसी भी डिजीज़ का जो केस रहता है वो दूसरे सेम डिजीज़ के केस से अलग रहता है। जैसे एक बच्चे को अगर स्पीच का इशू है तो हम सेम दवाइयाँ नहीं दे सकते जो दूसरे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के बच्चे को दिया जा रहा है। और इसी तरह से हम पंचकर्मा में भी दूसरे पंचकर्मा सेंटर से इसी तरह से अलग है कि हम जो पंचकर्मा में ट्रीटमेंट करेंगे वो हम मेडिसिन जो यूज़ करेंगे वो मेडिसिन स्पेसिफिकली उस बच्चे के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसकी ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है कि कौन से हर्ब्स, कौन सी जो हमें इम्प्रूवमेंट्स बच्चे में लेके आनी है तो कौन से हर्ब्स उसके लिए बेस्ट रहेंगे। इसीलिए जो एडवांस पंचकर्मा ऋषिपुष्ट आपको देता है वो दूसरे सभी सेंटर से पूरे विश्व में माना गया है कि सबसे अलग है एंड सबसे बेस्ट। और इसी तरह से जो हमारा सक्सेस रेट रहता है ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए शोधन चिकित्सा के द्वारा उसे पूरे विश्व में बेस्ट माना गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय फ्रॉम ऋषिपुष्ट.com आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वर्ल्ड रिनोन आयुर्वेदा हीलर डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम आपसे रूबरू होते हैं। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ऑटिज़म में, ऑटिस्टिक बच्चे के ट्रीटमेंट में उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी उसके आसपास का सर्कल है वो कैसे हेल्प कर सकता है। तो कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। मतलब कि अगर किसी घर में ऑटिस्टिक चाइल्ड है तो उसके आसपास का ऑरा जो है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स कि पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हों हर पॉइंट पे। इसमें आप पॉजिटिविटी लाने में जैसे कुछ काम कर सकते हैं, जैसे आप बच्चे की हर अच्छे काम पे, हर छोटे से छोटे अच्छी उसके वर्क के लिए उसे प्रेज़ करें, जिससे उसके मन में पॉजिटिविटी आए और वो नेगेटिविटी से दूर होता हुआ धीरे धीरे जो है वो इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है एक और पॉइंट है जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी कंपैरिजन मत करिए, अपने बच्चे का कंपैरिजन मत करिए दूसरे बच्चे के साथ। और कभी भी डोंट जज, कभी भी कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन जब किया जाता है तो एक तो आप में भी नेगेटिविटी आती है और बच्चे के ऊपर भी नेगेटिविटी थोपी जाती है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा है, उसको देखो वो ऐसे कर सकता है। तो कभी कंपैरिजन मत करिए। ठीक है। इसके बाद एक सेट रूटीन जो है वो रखिए। सेट रूटीन ज़रूरी है, मीन्स कि उसमें कंसिस्टेंसी रखिए कि सुबह से लेके शाम तक आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक चार्ट बनाइए, डेली की उसकी एक्टिविटीज़ का लिस्ट बनाइए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी जो है शामिल करिए। ठीक है। इसके बाद जो है एक प्ले शेड्यूल भी ज़रूरी है। बच्चे को हर टाइम, आज के टाइम में हम देखते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे के लिए जो है बिहेवियरल थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल या स्पीच थेरेपी चलाई जाती है। नो डाउट उससे भी इम्प्रूवमेंट आती है बच्चे में, बट कहीं ना कहीं वो आधी अधूरी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें सीखनी चाहिए बच्चे को वो वहाँ पे नहीं सीख पाता है। उसके लिए आप ही को अपना जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे के साथ एक प्लेइंग शेड्यूल भी रखिए बना के कि उसमें आप कुछ एक्टिविटीज़ करवाइए और उन एक्टिविटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ताकि बच्चा आपके साथ जो है वो कंफर्ट रहे और पॉजिटिव फील करे। देन ट्राई टू गेट सपोर्ट। एक पॉइंट है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कि कभी भी इस चीज़ को आप नेगेटिव लेके तो दूसरों से शेयर करने से घबराइए मत। आप जैसे बच्चे के और जिनके बच्चे हैं उनसे मिलिए,
और जहाँ पे आपकी बच्चे की थेरेपी चल रही है उनसे मिलिए, सपोर्ट मांगिए, ठीक है। और इसमें आप सीखिए कि और क्या क्या किया जा सकता है उन थेरेपीज़ के अलावा। तो इसमें कोई नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है या शाय होने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्कस करिए अपने बच्चे का केस दूसरे पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ। सो ये पॉइंट था, ट्राई टू गेट सपोर्ट। इसके बाद एक और बड़ा मेन पॉइंट है, इसमें साथ साथ आपको जो है अपना हेल्थ भी ठीक रखनी है, मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। अब खुद की हेल्थ को भी अगर आप ठीक रखोगे तब भी आप जो है बच्चे के साथ पॉजिटिव रह पाओगे। अदरवाइज आप अगर स्ट्रेस में रहोगे कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है या ऐसी प्रॉब्लम है, तो बच्चा भी आपको देख के जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। सो इसके बाद जो है गेट क्रिएटिव विद फूड, मतलब खाने में जो बच्चे को पसंद है उसमें उसे इन्वॉल्व करिए कुकिंग में, या उसको उस उसकी एक्टिविटी को उसके सामने करिए। और नई नई जो उसकी हैबिट्स हैं खाने की, अच्छी हैबिट्स हैं, उसको बढ़ाइए। तो सारे पॉइंट्स का यही एक पॉइंट निकल के आता है कि मेन जो पार्ट है वो है लव। जितना प्यार आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो दीजिए, और बच्चे के साथ अपना अफेक्शन, लव, ये सब उसे शो करिए और पॉजिटिविटी उसके आसपास रखिए। और घर में एक शेड्यूल बनाइए कि कोई भी नेगेटिव बात या कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी बच्चे के सामने ना की जा सके। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने बच्चे के इलाज में अगर आप इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को तो काफ़ी अच्छा जो है रिकवरी रिज़ल्ट मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ जो है वो आप तक समय से पहुँच सके। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Good day. I, Dr. Latika, on the behalf of Wrist Pushed, would like to share regarding role of meditation in the life of person who is suffering from autism spectrum disorder. Before discussing about this, I would like to say thank you to Dr. Navdeep Sharma, a world-renowned Ayurveda healer. Under his exemplary guidance today, I am able to share and guide you about this topic, which play a very important role in the life of a person who is suffering from autism spectrum disorder. Autism, it is a chronic neurodevelopmental disorder. In this, brain is unable to process sensory information normally. Meditation as a potential therapy for autism works excellently. Children typically face social fears and anxiety. It is equally vital to offer an evidence-based, holistic solution and harmonize both their emotional and physical well-being. Though meditation can be useful for many kids with autism, I know there are limitations, especially for the kids who do not know skills to learn or practice it correctly. Mindfulness-based program for adults with autism syndrome disorder reduce their comorbid symptoms such as symptom of depression, anxiety, distrust, interpersonal sensitivity, and sleeping problems. With practice of deep breathing, it is the best way to calm the mind of the autistic patient. Meditation is a conscious process of self-regulation that tempers the flow of thoughts, emotions, and automatic behavior in the body and mind. It helps to overcome physical and psychological challenges. With breathing exercises, it forces the flow of air through right or left nostril alternately, which results in selective activation of the sympathetic and parasympathetic branches of the autonomic nervous system. In Wrist Pushed, it is very important part to be guided to the patients of autism spectrum disorder. I hope the information shared by me will help the kids and adults who are suffering for this health issue, and it will help the family members
to support the patient. Thank you so much. Namaskar, Dr. Mamta Sharma this side from Wristpush. Today we will discuss about the role of yoga in autism. Autism is a neurodevelopmental disorder जिसमें कि हम कुछ इस तरीके के सिम्टम्स नोटिस करते हैं डिलीट माइलस्टोन के, जिसमें डिलीट स्पीच से लेकर के बिहेवियरल इश्यूज, रेपिटेटिव बिहेवियर या फिर इमोशनल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, स्ट्रेस, एंजाइटी और कुछ केसेस में फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, उनका हाइपर एक्टिव होना, ऐसे कुछ डिफरेंट सिम्टम्स हम नोटिस करते हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इन आयुर्वेदा व्हाट वी बिलीव देयर आर 3 फैक्टर्स: आहार, विहार एंड औषध। आहार मीन्स आवर डाइट, विहार मीन्स आवर लाइफस्टाइल एंड थर्ड फैक्टर इज औषध मीन्स मेडिसिन। बट हम यहाँ पे बात करने वाले सेकंड फैक्टर की, विहार की, लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल अगर हम बच्चों का प्रॉपर तरीके से अगर उनकी हेल्प करते हैं उनके लाइफस्टाइल को सही करने में, तो आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर में, उनके सिम्टम्स में किस तरीके से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर हम बात करें विहार में योगासन को अप्लाई करने की, उनको योगासन के प्रैक्टिस करवाने की, तो इसमें जैसे कि वृक्षासन, भुजंगासन, अगर हम बात करें विडाल आसन जो कि कैट पोज के नाम से जाना जाता है, या ट्री पोज, इस तरीके के कुछ पोजेस हैं जो बच्चे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ इजी आसन है, इजी पोजेस है जो वो इजीली कर सकते हैं। वो उनकी हेल्प करते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, अपनी बॉडी के प्रति उनको अवेयर करने में और मसल की टोन को बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ आसना डेफिनेटली हम उनके केस में उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर मेंटल कामनेस, राइट, अगर बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, अगर उनको एंजाइटी या कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी का इशू रहता है, तो ऐसे केसेस में व्हाट वी कैन डू, हम उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम या फिर ओम चांट, इस तरीके की इजी पर्टिकुलर प्राणायाम कि उनकी हेल्प कर सकते हैं। इससे उनका जो क्या होगा, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनको वो काम बिहेवियर होता है। तो इस तरीके से जो योगा आसन है और प्राणायाम है वो हेल्प करते हैं एक ऑटिज़म के बच्चों को। रिसर्चेस में देखा गया है कि जो बच्चे कुछ प्राणायाम या फिर योगा आसन परफॉर्म करते हैं, उनका बिहेवियर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है उन बच्चों से जो इन चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते या उनके पेरेंट्स उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि योगा आसन्स का एक प्रॉपर तरीके से जो हमारी तरफ से आपको गाइडेंस है, अगर आप उनको भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स और रिकवरी आप अपने बच्चों के केसेस में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हृष्टपुष्ट में। मैं डॉक्टर शिवानी। आज हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर जो है बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने हमें आपके रूबरू होने का मौका दिया। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर जो है बहुत ही सचेत रहते हैं, और जैसे उनकी नॉर्मल बच्चों के मुताबिक उनकी ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल बच्चों का जो है प्रॉपरली जैसे ऑटिज्म बच्चों का जैसे ब्रेन नहीं डेवलप हो पाता, तो इसी के कारण जो है उनका ज़्यादा जो है उनका देख रेख करनी पड़ती है। तो सेफ्टी को लेके जो है पेरेंट्स को मैं टिप्स देना चाहूँगी, जैसे कि अपने जो घर पे जो फर्नीचर है आपका, तो उसको आप जो है वो लाइट वेट अगर फर्नीचर है तो उसको आप जो है हैवी वेट फर्नीचर जो है प्रेफरेंस ज़्यादा दें, क्योंकि अगर बच्चा जो है फर्नीचर के साथ जैसे उसको उठाने की कोशिश करे या खेलता है तो उसको ही नुकसान जो है होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। सेकेंड थिंग इज, जैसे डोर के लॉक होते हैं वो भी आप जो है नॉब स्टाइल में बनवाएं, जैसे कि अगर बच्चा इन केस रूम में लॉक हो जाए तो
आपके पास जो है आप बाहर से उसको जो है की के साथ जो है ओपन कर पाएं। तो इस तरह के नो ब्लॉक्स जो है वो आप लगवाइएगा, क्योंकि अगर इन केस बच्चा जो है अंदर जो लॉक हो जाता है तो वो ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इस केस में बच्चा जो है हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिविटीज़ जो है वो करने लग पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल से वो शांत होता है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपके जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम्स हैं, इन सब चीज़ों को आपने अलमीरा या इस ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो ना पहुँच पाए, क्योंकि इससे वो अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़, आपने जो बकेट है, बाथ टब है, उसको आपने बिल्कुल खाली रखना है, क्योंकि अगर जैसे बच्चे को आप नहलाते हैं तो उसमें आप जितना पानी यूज़ किया बाकी जो है उसको आप एम्प्टी कर दें, ताकि बच्चा जो है उसमें कोई भी जो फर्दर जो कोई भी अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सके। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जैसे आपने अपने बालकनी में अगर जैसे ओपन बालकनी है तो उस पर जाल होता है या उसमें कई प्रकार के जो मिरर जो होते हैं, ग्लास होते हैं, वो आप ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि इससे बच्चा सेफ रहेगा, उसका गिरने का डर नहीं होगा। तो नेक्स्ट थिंग, जैसे आप अलमीरा है, फ्रिज है, इन सब चीज़ों को लॉक करके रखें, ताकि उसमें से जो बच्चा जो है कोई चीज़ निकाल ना ले, अपने आप को हानि ना पहुंचा सके। तो इस तरह की आपने चीज़ें जो हैं अपने ज़रूर जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। और जैसे बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में ज़्यादा है उस चीज़ के रिगार्डिंग आप उससे बातें करें एंड उसको उसका जो बिहेवियर है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, एंड जो वो बोल रहा है या जो भी उसका बिहेवियर है उसको आप ज़रूर समझिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। और बच्चे के सामने बिल्कुल भी जैसे अपना एंगर जो है वो मत उनके ऊपर जो है शाउट मत करिए। और जैसे फोर्सफुली कोई काम, जैसे कि अगर वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा तो फोर्सफुली उसको जो है हमने नहीं कहना कि आप जो है आई कांटेक्ट जो है नहीं बना रहे, तो हमें फोर्स नहीं करना बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चा और एग्रेसिव हो जाएगा और ज़्यादा जो है वो एंगर जैसे गुस्से में आ सकता है। तो आपने ये सब चीज़ें अवॉइड करनी हैं। तो ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे और ज़्यादा अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिवानी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।